Yo, welcome to Physics with Vinay. I am Vinay and I'm back. This is the 7th lecture of Newton's laws. और इस lecture में we are going to be talking about springs. Let's take a look. So, एक suppose मेरे पास spring है, massless spring की बात कर रहा हूँ, जैसे massless strings की बात की है अपन ने in the previous lectures. And suppose it's connected to a block of mass m. So, initially it is at its natural length. So, natural length का मतलब है the spring is applying zero force on the block. तो ये मेरा नेचुरल लेंथ है जो मैं NL से रिप्रेजेंट करने वाला हूं. सो ये नेचुरल लेंथ पे द फोर्स बाय द स्प्रिंग इज 0. नाउ इफ यू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय पुलिंग द ब्लॉक अ डिस्टेंस x, तो स्प्रिंग कितने से स्ट्रेच हो गया? x से स्ट्रेच हो गया. So the spring will apply a force in order to try to restore back its natural length. तो तुमने अगर ब्लॉक को पुल किया है, तुमने स्प्रिंग को पुल किया, तो स्प्रिंग विल ट्राई टू पुल यू बैक टू कम बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ. अगर तुम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, स्प्रिंग विल पुश यू एंड ट्राई टू कम बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ. अब वो पुल कर रहा है, मतलब कुछ फोर्स लगा रहा है, वो जो फोर्स लगा रहा है, दैट फोर्स comes out to be equal to kx, where k is called the spring constant या force constant. And x is my, in this case it is the extension of the spring. Yeah, it can also be the compression. ठीक है, इस केस में मैंने extend किया है, तो the force का direction is always in such a manner कि the spring is trying to come back to its natural length. ठीक है. So ये this is called Hooke's law. So we are going to be talking about springs that obey Hooke's law. ठीक है. If you compress the spring, natural length से तुमने x distance से compress कर दिया spring को, so the spring will push the block, trying to come back to its natural length with the force of once again kx. X is now the compression और k is the spring constant. ठीक है. So इसमें spring constant का यूनिट्स क्या होगा? फोर्स बाय एक्स, मतलब न्यूटन पर मीटर. ऑलराइट, अच्छा देख लो. सो फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट्स से दो ब्लॉक्स है, लेट्स से 1 kg 2 kg कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग. लेट्स से द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 10 न्यूटन पर मीटर. अच्छा, नाउ इसको, इस ब्लॉक को पुल करते हैं अपन लेट्स से 0.3 मीटर से, और इस ब्लॉक को पुल करते हैं लेट्स से 0.4 मीटर से. ठीक है, तो दो, और एंड देन द ब्लॉक्स आर रिलीज्ड. सो फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशंस पूछा. सो पहले नेचुरल लेंथ पर था स्प्रिंग, मतलब जीरो फोर्स लगा रहा है, फिर द ब्लॉक आर पुल्ड, द ब्लॉक्स आर पुल्ड एंड रिलीज्ड. Now, ये जो massless spring है, exactly like massless string, it will apply the same force at both its ends. वो अपन ने पहले देखा था न्यूटन्स लॉज के earlier lectures में कि एक massless string applies the same tension, the same force at both its ends because the force on the string must be zero. So दोनों end से total force on the string must cancel out and become zero because वो string massless है. And same logic here. ये spring massless है, so blocks must apply the same force and opposite direction on the spring. So spring will also apply the same force at both its ends on the blocks in the opposite direction. So the spring will try to pull the blocks inwards because वो extend करके अपन ने छोड़ दिया. ठीक है. Okay, so यहाँ पे the common mistake that students make is इस पे force लगा देते k into 0.3, इस पे लगा देते k into 0.4. That is wrong. When we write the spring force as kx, the x is the extension in the total length of the spring. तो actual length, total length कितने से बढ़ा? 0.7 मीटर से बढ़ा है कि नहीं? So the extension here is 0.7 meters. So the force of the spring is going to be kx. तो 7 न्यूटन हो जाएगा. ठीक है. So दोनों ब्लॉक्स पे 7 न्यूटन लगने वाला है initially just after releasing. So therefore 1 kg का acceleration हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू द राइट एंड 2 kg का एक्सेलरेशन हो जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू द लेफ्ट. ऑलराइट, सो सिंपल बट जस्ट बेसिक
फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए. देख लो. नाउ एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग इज दैट, और इसी पे यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में इन स्प्रिंग्स. स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली. इसका मतलब क्या है? सपोज मैं एग्जांपल से बताता हूं. सपोज ये 2 kg है और ये 3 kg है. ठीक है. सो स्प्रिंग से हैंगिंग है और ये स्ट्रिंग है, इक्विलिब्रियम है. सो द सिस्टम इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम. नाउ इफ आई सडनली कट द स्ट्रिंग को मैंने कट कर दिया तो 3 kg तो नीचे गिर जाएगा. 3 kg पे ये ऐसा स्ट्रिंग बचेगा, पर वहां पे तो टेंशन जीरो हो जाएगा ना. इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग. दिस मासलेस स्ट्रिंग इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग एनीमोर. ऊपर वहां पे टेंशन जीरो है. सब जगह दोनों एंड पे सेम टेंशन लगाएगा मासलेस स्ट्रिंग. तो यहाँ पे टेंशन जीरो एंड दिस विल फ्री फॉल. करेक्ट. व्हाट अबाउट 2 kg? 2 kg was hanging, नीचे कट कर दिया. Do you think it will go up, it will remain, it will come down? क्या होगा? Let's analyze. ये जो स्प्रिंग फोर्स है, इनिशियली स्प्रिंग फोर्स कितना है? इक्विलिब्रियम में. It has to balance this entire weight, correct? So the spring force is 50 newtons. 5 kg का entire weight को बैलेंस करा है. G का वैल्यू 10 लिया मैंने. ठीक है. Now, just after cutting, this spring force cannot suddenly change from 50 to some other finite value. Cannot have some finite change in the spring force. क्यों? Because spring force is equal to kx. अगर x is changing in zero time, मतलब just before cutting और just after cutting x अगर change हो रहा है, तो इसका मतलब 2 kg का infinite velocity आ गया. 2 kg suddenly इधर से इधर या इधर से इधर थोड़ी ना चला जाएगा जीरो टाइम में. तो पॉसिबल नहीं है. टेलीपोर्ट थोड़ी ना करेगा इधर एक ओरिजिनल प्लेस से कहीं और. So therefore, just after cutting, the spring force will still be 50 Newton. And that is what I meant here. Spring force does not change instantaneously. इसका मतलब है when such a string or something else is cut in the system, the spring that is connected, उसका force just before cutting, just after cutting is going to remain same. तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? नीचे 20 न्यूटन लगेगा उसका ग्रेविटी. सो एक्सेलरेशन वुड बी 50 माइनस 20 डिवाइड बाय 2. सो जैसे स्ट्रिंग इज कट, 2 kg विल एक्वायर एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. एज इट ट्रैवल्स अपवर्ड्स, द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग विल चेंज एंड ऑफ कोर्स द स्प्रिंग फोर्स विल ग्रेजुअली चेंज. ग्रेजुअल चेंज इज फाइन, इंस्टेंटेनियसली इट कैन नॉट चेंज. ठीक है. Unless the spring is itself cut. So, important point. अगर तुमने स्प्रिंग को ही कट कर दिया यहां पर, तो स्प्रिंग को ही अगर तुम कट करोगे, स्प्रिंग को अगर कट करोगे तो स्प्रिंग ऐसे बचेगा. लाइक द स्प्रिंग का अपर एंड अगर फ्री हो गया तो वहां पे तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा स्प्रिंग, तो मतलब स्प्रिंग फोर्स जीरो हो गया. अगर एक एंड पे स्प्रिंग फोर्स जीरो हो गया तो दूसरे एंड पे भी स्प्रिंग फोर्स जीरो हो गया. क्यों? बिकॉज स्प्रिंग मासलेस है, सो इट इज गोइंग टू अप्लाई द सेम फोर्स एट बोथ इट्स एंड्स. सो सडनली स्प्रिंग फोर्स विल बिकम जीरो इन दिस केस. ठीक है. सो एज यू कट दिस, इट विल ऑटोमेटिकली कम बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ. ठीक है. तो इस केस में स्प्रिंग फोर्स कैन चेंज सडनली. इट कैन सडनली बिकम जीरो. ठीक है. ऑलराइट, देख लो इस पे और क्वेश्चंस करते हैं. देख लो पहले. So let's take a look at a question. तो हमारे पास 3 ब्लॉक्स है एंड द सिचुएशन इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. लेट्स से ये स्प्रिंग और ये स्ट्रिंग है. तो फर्स्ट थिंग दैट आई कट is let's say I want to find the accelerations of each block just after cutting. Let's say first case में मैं string cut करता हूँ. So just after cutting the string between 1 and 2, I want to find the acceleration of each block. Okay.
तो ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट यू हैव टू फिगर आउट द स्प्रिंग फोर्स when the system is in equilibrium. So that is the spring force that is also going to remain just after cutting. So यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? ये वाला जो स्प्रिंग फोर्स है that has to balance weight of 3 kg, वो 30 न्यूटन हो गया, करेक्ट? ये वाला जो स्प्रिंग फोर्स है that has to balance the weight of the entire system, so 60 kg, 6 kg, that spring force would be 60 kg, 60 न्यूटन, सॉरी, ठीक है? Alright, so when I cut the string, ये ऐसा कैसे ही रहेगा, ये भी ऐसा कैसे ही रहेगा, है कि नहीं? Alright, so I would like you to pause the video and try it out. Try writing the acceleration of each block, then take a look at my solution. Okay, तो मैंने ये स्ट्रिंग को कट किया, तो अगर मैं 1 kg ब्लॉक का FPD बनाऊँ तो ऊपर क्या फोर्स लग रहा है? 60 न्यूटन, और नीचे क्या फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन। ये जो स्ट्रिंग का कुछ पोर्शन बचेगा उसमें तो टेंशन जीरो हो जाएगा, ये कट कर दिया ना, जो थोड़ा सा स्ट्रिंग का पोर्शन बचेगा कनेक्टेड टू 1, उसमें तो टेंशन जीरो है बिकॉज एक एंड फ्री हो गया, ठीक है? बस 60 और 10 लग रहा है, सो एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg वुड बी 60 minus 10, 50 divided by 1, 50 meter per second squared upwards. Okay, then 2 kg, 2 kg पे spring force, see अगर if the spring force is acting upwards on 3 kg, so it will act downward on 2 kg because वो spring force is pulling 3 kg, so it will pull from the both the ends, correct? तो 2 kg से भी ऐसे पुल करेगा, तो कितने से पुल करेगा? 30 न्यूटन से। सो 2 kg पे एक 30 न्यूटन का स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, एक 20 न्यूटन का ग्रेविटी लग रहा है, हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 50 divided by 2, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, एंड 3 kg फाइनली। 3 kg पे क्या लग रहा है? 30 न्यूटन जो पहले लग रहा था स्प्रिंग, वही वापस लगेगा, और ग्रेविटी भी 30, सो एक्सेलरेशन ऑफ 3 वुड बी 0। ओके, समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट लिटिल कंफ्यूज्ड, कि कंफ्यूज मतलब विजुअलाइज नहीं होता है कि ये 3 का एक्सेलरेशन 0 मतलब वहीं पे रुका रहेगा क्या? These accelerations are the initial accelerations just after cutting. उसके बाद तो स्प्रिंग एक्सटेंशन वगैरह सब चेंज होगा, तो ऑब्वियसली फोर्सेस चेंज होंगे, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी 0 नहीं रहेगा, ठीक है? दिस इज जस्ट द इनिशियल एक्सेलरेशन। उसके बाद क्या होगा, वो ऑसिलेशंस होंगे, वो अपन बाद में के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो ये फर्स्ट केस था जब मैंने स्ट्रिंग कट किया। नेक्स्ट केस में मैं अभी स्प्रिंग्स कट करता हूँ एक एक करके, पहले ये देख लो, फिर ये रब करता हूँ, फिर नेक्स्ट केस पे जाते हैं। Now let's find the acceleration of each block just after cutting the upper spring. Upper spring को भी कट करते हैं। Upper spring को कट किया मतलब उसका फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है? One thing, स्ट्रिंग का टेंशन can change instantaneously. स्ट्रिंग का फोर्स kx वगैरह ऐसा तो कुछ है नहीं अपने पास से ना। स्ट्रिंग फोर्स, स्ट्रिंग टेंशन देयरफॉर कैन चेंज इंस्टेंटेनियसली, ठीक है? स्प्रिंग ऑन द अदर हैंड वाज लिमिटेड बाय द फैक्ट कि उसका फोर्स इज kx, सो फिर x सडनली चेंज नहीं हो सकता, तो स्प्रिंग फोर्स कैन नॉट चेंज सडनली, बट यहाँ पे स्ट्रिंग कैन। ओके, तो उसका हम लोग वो मिस्टेक मत करना, वो भी काफी कॉमन मिस्टेक है कि स्ट्रिंग का टेंशन निकाल देते हैं पहले जस्ट बिफोर कटिंग, वही टेंशन यूज करते हैं जस्ट आफ्टर कटिंग, दैट इज रॉन्ग। ओके, ऑलराइट, सो मैंने अपर स्प्रिंग को कट कर दिया, तो अपर स्प्रिंग को कट कर दिया। सी दिस स्ट्रिंग, द 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय दिस स्ट्रिंग, यू कैन ट्रीट इट एज वन बॉडी। ओके, तो फिर कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सो आई सजेस्ट तुम ट्राई करो, बस जिस स्प्रिंग को कट किया उसका फोर्स 0 हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ ट्राई इट आउट, देन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन। ऑलराइट, सो ऊपर वाले स्प्रिंग को कट कर दिया। नाउ 1 kg एंड 2 kg आई एम गोइंग टू ट्रीट इट एज वन बॉडी। तो इस पे ऊपर का स्प्रिंग फोर्स तो 0, पूरे सिस्टम पे नीचे कितना लग रहा है? एक तो 3 kg टोटल वेट, उसका 30 न्यूटन लगेगा, और ये स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है ना, करेक्ट? तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 30 + 30, 60 डिवाइडेड बाय 3, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। दिस इज फॉर 1 and 2, समझ पाए? एंड व्हाट अबाउट 3 kg? 3 kg पे स्प्रिंग फोर्स अभी भी 30, ग्रेविटी अभी भी 30, एक्सेलरेशन फिर से 0, सिंपल। ओके, जब स्प्रिंग कनेक्टेड रहता तो बहुत सिंपल है, दोनों ब्लॉक्स को एक ब्लॉक की तरह ट्रीट करके
combine them and write the force equation. All right. Next situation, let's cut the lower spring. मैं यहीं पे कर लेता हूँ. When the lower spring is cut, try करो. Just after cutting the lower spring, find the accelerations. So lower spring cut कर दिया, तो लोअर स्प्रिंग का फोर्स 0 हो गया. तो अभी 3 kg पे अगर मैं डायरेक्ट देखो तो उसमें तो सिर्फ 30 न्यूटन लग रहा है, वो तो फ्री फॉल हो गया. ठीक है, तो 3 kg का इज गोइंग टू परफॉर्म फ्री फॉल, उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स. एंड 1 एंड 2 को फिर से मैं कंबाइन कर लेता हूं. तो अब ये स्प्रिंग फोर्स हट गया जो 30 न्यूटन का था. ठीक है, और 2 kg पे सॉरी 1 और 2 दोनों को मिला के ग्रेविटी कितना लग रहा है नीचे 30 न्यूटन. तो ये ग्रेविटी का फोर्स है. एंड अब ये ऊपर 60 न्यूटन लग रहा है स्प्रिंग का. तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 60 माइनस 30 डिवाइड बाय 3, सो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड्स फॉर 1 एंड 2. ओके, सो वी बेसिकली एनालाइज ऑल पॉसिबल सिचुएशंस इन दिस केस ऑफ 3 ब्लॉक्स. ओके, देख लो, फिर और एक आध क्वेश्चन करते हैं. अभी एक क्वेश्चन देखो. ये 1 kg, ये 4 kg, ये 3 kg, ये 2 kg. ठीक है, सब kgs में 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg. और लेट्स से इसको कट कर देता हूँ. ठीक है, तो पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक. जस्ट आफ्टर कटिंग. ठीक है, ट्राई करो. ओके, सो इस क्वेश्चन में इनिशियली ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम है, वो मैंने बोला नहीं बट इट्स अज्यूम्ड, आई शुड हैव सेड. तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा यहाँ पे 40 न्यूटन. ठीक है, यहाँ पर भी 40, और ऊपर वाला स्प्रिंग हैज टू बैलेंस द वेट ऑफ 5 kg, सो 50 न्यूटन होगा. ठीक है, स्ट्रिंग का टेंशन फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो तो बाद में चेंज हो सकता है. ऑलराइट, तो अगर ये कट कर दिया तो 2 kg तो ऑब्वियसली फ्री फॉल करेगा, उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स. व्हाट अबाउट 3 kg? सी, दिस स्प्रिंग इज गोइंग टू पुल दिस स्ट्रिंग. यहाँ पे स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को ये स्प्रिंग पुल कर रहा है कितने से 50 न्यूटन. करेक्ट, तो वो स्ट्रिंग भी स्प्रिंग को पुल करेगा 50 न्यूटन से. न्यूटन थर्ड लॉ. बेसिकली दोनों में फोर्स सेम होगा बिकॉज दे गोइंग टू पुल ईच अदर विद द सेम फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ. तो अगर ये स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं हुआ तो ये टेंशन भी चेंज नहीं होगा, तो ये टेंशन भी अभी 50 न्यूटन ही रहेगा. सो देयरफॉर अगर मैं 3 kg का एफपीडी बनाऊं तो उस पर 50 ऊपर लगेगा, नीचे 30 लगेगा, एक्सेलरेशन वुड बी 20/3 अपवर्ड्स. करेक्ट. देन 4 kg पे ऊपर 40 लग रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है, नीचे भी 40 लग रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन 0. एंड फाइनली 1 kg में एक्सेलरेशन 0 रहेगा, ऊपर 50 चेंज नहीं हो रहा है, ये नीचे जो स्प्रिंग फोर्स 40 है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, और ग्रेविटी 10, 1 का भी एक्सेलरेशन 0. ठीक है, सो 2 का 3 का एक्सेलरेशन आएगा, 1 एंड 4 का एक्सेलरेशन 0. देख लो. नाउ लेट मी चेंज द सेटअप अ लिटिल बिट. वैसे ये प्रीवियस केस की तरह, बट यहाँ पे स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग लगा दिया मैंने. 1 kg, 4 kg, 3 kg, 2 kg. ओके, फिर से ये कट कर रहा हूँ. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग. इनिशियली द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, अभी थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा. ट्राई करो, देन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन. ऑलराइट, सो यहाँ पर 2 kg का अगेन एक्सेलरेशन तो जी होने वाला है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, बिकॉज वो फ्री फॉल करेगा. नाउ 4 kg 0 एक्सेलरेशन बिकॉज यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा था 40 न्यूटन, और ग्रेविटी अभी भी 40 है. आई मीन स्प्रिंग फोर्स अभी भी 40 है, ग्रेविटी तो हमेशा ही 40 है, तो एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग भी 0. नाउ 1 एंड 3 के लिए थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा. 3 पे क्या लगेगा 30 न्यूटन, और 1 kg पे ये स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है 40 न्यूटन लग रहा है ना नीचे, और 1 kg का 10 न्यूटन. करेक्ट. सो नाउ इट्स लाइक अ स्टैंडर्ड पुली प्रॉब्लम, बट इन एडिशन टू ग्रेविटी एक एक्स्ट्रा फोर्स भी आ गया 40 न्यूटन का. ओके, अपन डायरेक्टली 1 kg का अलग से एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते बिकॉज ये टेंशन नहीं पता. जो टेंशन पहले था और जो टेंशन जस्ट आफ्टर कटिंग है
वो तो डिफरेंट हो सकता है, स्ट्रिंग का टेंशन डिफरेंट हो सकता है ना. सो इसमें वी कैन यूज अ क्यूट मेथड, ओपन इट अप. तो ये 30 न्यूटन और ये 50 न्यूटन यहाँ पर. तो ये जो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो 50 minus 30, 20 divided by 4, 5 meter per second square. So 1 kg will be going down with 5 meter per second squared and 3 kg will be going up with 5 meter per second squared. Alright. देख लो, एक क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे स्प्रिंग्स एंगल पर है. मेरे पास ब्लॉक है. So let's say this angle is theta. तो ऐसे दो स्प्रिंग्स कनेक्टेड है इस ब्लॉक को. तो बोला है कि इसको अगर मैं कट कर दिया थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, सो फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. ऑलराइट, ट्राई इट आउट. ओके, सो पहले तो स्प्रिंग फोर्स निकालते हैं. दोनों का वैल्यू तो सेम ही होगा बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इक्वल होना है ना. तो एफ कॉस थीटा कैंसिल होना चाहिए, तो एफ दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए. तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आएगा, एफ साइन थीटा. तो 2 एफ साइन थीटा इज एम जी, इनिशियल इक्विलिब्रियम. सो स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा एम जी बाय 2 साइन थीटा. नाउ वंस द राइट स्प्रिंग इज कट, ओनली लेफ्ट स्प्रिंग विल रिमेन. सो वो एफ बचेगा और एक एम जी बचेगा. ठीक है. ओके, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का कितना हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ए वाई एम जी माइनस एफ साइन थीटा. एफ साइन थीटा मतलब कितना हो जाएगा, एम जी बाई 2 डिवाइड बाय मास. तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जी बाई 2 हो जाएगा. और एक्स कंपोनेंट में एक्सेलरेशन कितना होगा, एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय मास. एफ कॉस थीटा मतलब एम जी बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. सो एम जी बाई 2 कॉट थीटा डिवाइड बाय मास. तो जी कॉट थीटा बाय 2. सो ये दोनों कंपोनेंट्स हो जाएंगे. इफ दे आस्क यू मैग्नीट्यूड तो वो तो स्क्वायर एंड ऐड कर सकते हो. ठीक है, वो खुद कर सकते हो. ऑलराइट, सिंपल है, देख लो. नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन फ्रॉम पाथफाइंडर. तो मेरे पास 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं. A, B and C and 3 masses हैं आइडेंटिकल मान लो. तो पूछा है पहले इक्विलिब्रियम में. ठीक है. सो इसको अगर कट कर दिया तो पूछा है फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशंस ऑफ ईच बॉल जस्ट आफ्टर कटिंग. ठीक है, पाथफाइंडर वर्ड मैंने यूज किया तो डरना नहीं है. It's not difficult, just get the forces just before and just after and then try the question, then take a look at my solution. ठीक है, तो अगर मैं B और C को देखूं तो ये स्प्रिंग्स तो कट नहीं हो रहे, तो जो पहले फोर्सेस था वही बाद में भी फोर्सेस रहेंगे स्प्रिंग पे. करेक्ट. ये जो स्प्रिंग फोर्सेस थे कैसे भी थे, कंप्रेशन एक्सटेंशन पता नहीं अपने को कैसा है, जो भी है स्प्रिंग फोर्स जैसे भी थे, जो पहले थे they were balancing out mg. Just after that also they will be balancing out mg because they are not changed. So therefore acceleration of B and acceleration of C directly can be written to be 0. समझ में. And what about A? A पे जो ये फोर्स था टेंशन का फोर्स, ठीक है, that was balancing the entire weight 3 mg. Correct. But that should also be equal to, let's say ये F1 और F2 वेक्टर है, उनका रिजल्टेंट बैलेंस कर रहा था. करेक्ट. F1 और F2 का भी रिजल्टेंट को बैलेंस आउट कर रहा था दिस टेंशन, है कि नहीं. तो इनका रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है 3 mg. ये दोनों मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का वैल्यू
इज इक्वल टू, अच्छा एक mg भी आएगा नीचे, सो लेट मी राइट F1 F2 एंड mg तीनों का जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है दैट वाज बैलेंसिंग आउट द टेंशन, करेक्ट। अब वो टेंशन हट गया है कि नहीं, तो अब ए पे क्या फोर्सेस बचा, बस ये F1 F2 एंड mg, पर उनका मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है 3 mg है, पूरे तीन रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना है 3 mg है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा 3g डाउनवर्ड्स। समझ में? आई डोंट इवन हैव टू कैलकुलेट द इंडिविजुअल फोर्सेस, आई जस्ट नीड टू नो कि वो रिजल्टेंट फोर्स कितना है इनिशियली बिफोर कटिंग, बिकॉज वही फोर्स रहेगा जस्ट आफ्टर कटिंग। ऑलराइट, ओके, इट वाज अ क्लेवर क्वेश्चन बट नॉट टू डिफिकल्ट वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देख लो। नाउ लेट्स लुक एट स्प्रिंग्स इन सीरीज। सो मेरे पास सपोज ऐसे दो स्प्रिंग्स है, तो स्प्रिंग्स इन सीरीज का मतलब है दे आर attached to each other one end to the other end and they have the same force. Why? Because एक स्प्रिंग दूसरे पे सेम फोर्स से पुल करेगा ना, जो मतलब न्यूटन थर्ड लॉ से both the springs will be pulling each other और pushing each other with the same force. ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक है, सो ये K1 ये K2, so I want to replace this system by a single spring of K equivalent such that अगर मैं इस ब्लॉक को X से पुल करूँ तो दोनों सिचुएशन में सेम फोर्स लगेगा ब्लॉक पे। दैट इज द पॉइंट कि आई वांट टू रिप्लेस दिस एंटायर सिस्टम ऑफ टू स्प्रिंग्स बाय अ सिंगल स्प्रिंग व्हिच विल अप्लाई द सेम फोर्स एज द ओरिजिनल सिस्टम। ओके, तो अगर मैंने एक्स से पुल किया, सो लेट्स से बोथ द स्प्रिंग्स, देखो मुझे तो पता है दोनों स्प्रिंग का फोर्स सेम होने वाला है, एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाएंगे, सो लेट्स से बोथ द स्प्रिंग्स हैव द फोर्स F, so F इज अ स्प्रिंग फोर्स, तो यहाँ पर भी वही लगेगा, K2 will be pulling block M with F and pulling spring K1 with F. Spring K1 will also pull K2 back with F, Newton's third law. तो वही F यहाँ पर भी मुझे चाहिए, ठीक है। ओके, तो लेट्स से एक्सटेंशन इन K1 is X1. Extension in second spring is X2. And extension in the equivalent spring तो यही X हो गया ना। So can I say अगर ये X1 से डिस्प्लेस हुआ, इसके आगे ये और X2 से डिस्प्लेस होगा, मतलब X2 से एक्सटेंड होगा, तो टोटल ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट X1 प्लस X2 हो गया ना। सोचो, मतलब इफ K1 गेट्स एक्सटेंडेड बाय X1, मतलब ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है दोनों के बीच का वो X1 से आगे गया, उससे और आगे ये वाला पॉइंट X2 से गया, तो M गॉट टोटल डिस्प्लेस M गॉट बाय X1 प्लस X2। सो कैन आई से X is X1 plus X2, correct? Now I know I can write force as K1x, K1x1, extension x1 है इसमें, I can also write it as K2x2, extension इसमें x2, but I can also write it as K equivalent x, वही तो है कि same force लगना चाहिए। So let me just substitute all of this in terms of forces. तो x को can I write it as F by K equivalent, x1 को I can write it as F by K1, और x2 को I can write it as F by K2, and therefore I get my equation 1 by K equivalent is 1 by K1 plus 1 by K2। ठीक है, तो ये अपन याद रखेंगे, और I can also write K equivalent as K1 K2 by K1 plus K2। This is something that we will like to remember. Series में springs add up in this manner. अगर तुमने कभी स्कूल में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, उसमें रेजिस्टर्स पढ़ा है, तो रेजिस्टर्स के सीरीज में उल्टा होता है, रेजिस्टर का पैरेलल वाला फॉर्मूला की तरह ये दिखता होगा तुमको इफ यू हैव स्टडीड सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। ओके, ऑलराइट, देख लो। नाउ लेट्स लुक एट स्प्रिंग्स इन पैरेलल। सो ये K1 है, ये K2 है, both have the same natural lengths. So when I pull this by X, I want to replace it by a single spring such that it produces the same force when I pull this also by X. तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको X से पुल किया तो क्या फोर्सेस लगेगा ब्लॉक पे, K1x एंड K2x। So K1x मतलब K1x plus K2x should be equal to, इसको X से पुल किया तो इस पे क्या फोर्स लगेगा, K इक्विवेलेंट X, सेम फोर्स चाहिए मुझे। तो पैरेलल में मेरा फॉर्मूला बन गया K1 plus K2
सीरीज में 1 बाय वो रेसिप्रोकल्स ऐड करना है. ओके, देख लो फिर एक क्वेश्चन करते हैं इस पर. तो कैसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? K1, K2, K3, K4. Okay, so they can ask you, if I pull the block down by X, find the spring force on the block. Net spring force. Springs कितना net force लगा रहा है on the block. Okay, तो try करो, then take a look at my solution. So K1, K2 सीरीज में है, K3, K4 सीरीज में, और दोनों का सिस्टम पैरेलल में है कि नहीं. पहले इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, वो मेरा क्या बन जाएगा, K1 K2 बाय K1 प्लस K2. फिर इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, वो क्या बन जाएगा, K3 K4 बाय K3 प्लस K4. एंड दीज टू कॉम्बिनेशंस आर इन पैरेलल. सो फाइनली मैं K इक्विवेलेंट वुड बी पैरेलल तो जस्ट ऐड करना है, प्लस, करेक्ट. So my force would be K equivalent into X and my acceleration would be K equivalent into X divided by mass. This is my answer. Alright. ठीक है, देख लो. अच्छा, अब अगर स्प्रिंग को कट करते हैं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है. इस स्प्रिंग को अगर सपोज तुमने कट किया, व्हाट हैपेंस इज फॉर अ गिवन मटेरियल, the spring constant is inversely proportional to its natural length. So, for example, suppose ये natural length L है, and I cut it, let's say into 1:2 ratio. मतलब this becomes, let's say, 2L by 3, and this becomes L by 3. So this is 2L by 3, इसका लेंथ, और इसका ये L by 3 है. तो लेंथ L का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो 2L by 3 का 3K by 2 बन जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. लेंथ L का K है, तो L by 3 का 3K. ठीक है, तो these springs, the spring constant will be inversely proportional to natural length. That is what we have to remember. And this makes sense. देखो, just confirm करो, अगर इन दोनों को अपने जोड़ दिया वापस, तो we should get back K, है कि नहीं. इन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया, इन दोनों को मैंने अटैच कर दिया, तो आई शुड गेट बैक K. इन दोनों को अटैच करने का मतलब वो सीरीज में हो गया, तो उसका सीरीज इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 by K इक्विवेलेंट शुड बी 1 by 3K प्लस इसका रेसिप्रोकल 2 by 3K. तो देखो K इक्विवेलेंट कितना बन रहा है, K, एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज इसी को ब्रेक करके निकला था ना ये. ठीक है, सो दिस एक्सप्रेशन मेक्स सेंस. स्प्रिंग कांस्टेंट हैज टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ. यू अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज वंस यू अटैच देम बैक, दे शुड ऐड अप लाइक द सीरीज फॉर्मूला. ठीक है, देख लो. अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस भी देख लेते हैं. तो स्प्रिंग बैलेंस इज जस्ट अ वे टू मेजर, it's usually used to measure weight, just like weighing machine is used to measure weight, but we know actually weighing machine doesn't measure weight, it measures the normal force. वैसे यहाँ पर जो स्प्रिंग बैलेंस है, you connect a block, so the spring force doesn't actually measure the weight, it measures the spring force. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू mg, द रीडिंग विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक. बट सपोज द स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच्ड इन एन एलिवेटर. एलिवेटर में अटैच कर दिया और ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो अभी जो स्प्रिंग फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स माइनस mg शुड बी इक्वल टू ma. So therefore spring force will not be equal to gravity. ठीक है, वो वेट से ज़्यादा रीडिंग बताएगा. ऑलराइट, तो बस वो ध्यान रखना अपने को. स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स द स्प्रिंग फोर्स. ओके, देख लो. नाउ लेट्स लुक एट द केस ऑफ अ मैसिव रोप. जो भी अपने अभी तक किया, स्ट्रिंग्स या रोप्स, दे हैव बीन मासलेस, बट यहाँ पे अगर मास होगा तो कैसे होगा. सो व्हाट विल हैपन इज टेंशन देन नीड नॉट बी द सेम. सो फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ रोप दैट इज हैंगिंग, ठीक है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो x डिस्टेंस पे मुझे टेंशन निकालना है. इसका मतलब क्या,
So tension at this point का मतलब है tension by this upper portion or the force by the upper portion of the rope on the lower portion. That is what the tension at that point means. So अगर मैं इसका FPD बनाऊँ, इस shaded portion का FPD बनाऊँ मैं, तो ऊपर वाला पोर्शन कितना फोर्स लगा रहा है उसको मैं टेंशन बोलूंगा, और नीचे क्या लग रहा है, वेट लग रहा है. अच्छा, अभी पूरा रोप का मास m है, लेट्स से लेंथ l है, तो यूनिटरी मेथड l लेंथ का मास m है तो x लेंथ का मास कितना, mx by l into g, that is the gravitational force acting. So this tension, the force by the upper portion on this lower portion has to balance the weight. So we get tension as a function of x. So now you can see tension is a non-uniform quantity, मतलब tension is a variable here. तो x equal to 0 पे tension कितना है, 0, and that makes sense because x equal to 0 पे free end, tension is always 0 at the free end. ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वहां पे the rope is not applying a force on anything, तो obviously force है ही नहीं, मतलब force 0 है, मतलब tension 0 है, correct? ठीक है. and as x increases tension will increase. highest tension कहाँ पर होगा, highest point पे. okay, x equal to l पे tension कितना होगा, mg. basically the rope is pulling the ceiling with a force of mg. makes sense because the ceiling will also have to pull the rope up by the value of mg to balance out the weight. तो अगर सीलिंग रोप को mg से पुल कर रहा है तो ही रोप इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो रोप भी सीलिंग को उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे पुल करेगा कितने से, mg से. ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग टेंशन एज mg. ऑलराइट, अगर एक रोप है उसको मैं पुल कर रहा हूं स्मूथ सरफेस पे, मास m है और मुझे निकालना है ऐसा फंक्शन ऑफ x टेंशन कितना होगा, तो इस केस में तो ये एक्सेलरेट करेगा अभी. ठीक है, बट लॉजिक सेम ही है. व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड टेंशन इन अ रोप एट एनी पॉइंट, जस्ट इमेजिन you split the rope into two sections, draw the FBD of one of the two sections and get the force by one portion on the other. वही तो मेरा टेंशन है. ठीक है, तो इसमें अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है, सो पहले तो एक्सेलरेशन कितना होगा, F by m. अब इस पॉइंट में मुझे टेंशन निकालना है, तो लेट मी स्प्लिट द रोप इनटू टू पोर्शंस. करेक्ट, इसका मैं FBD बनाता हूं, तुम इसका भी बना सकते हो, सेम आंसर आएगा. तो इसके FBD में द राइट पोर्शन इज पुलिंग द लेफ्ट पोर्शन विद सम फोर्स व्हिच आई एम कॉलिंग टेंशन. अच्छा, लेंथ l देना चाहिए था, सो लेंथ l का मास m, तो x का मास कितना, mx by l. तो टेंशन विल हैव टू प्रोड्यूस इसका एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का वैल्यू है f by m, तो ये मेरे पास आ गया fx by l. So this is how tension will vary in a rope which is being pulled by force F. Once again, quickly confirm the end points. X equal to 0 पे tension 0 है, makes sense. So that is a free end. It's not connected to anything. And x equal to L पे the tension is F. Does it make sense? Yes. तुम अगर right end को F से pull कर रहे हो, तो rope तुम्हें pull करेगा same force F से. तो rope जिस force से pull कर रहा है वही force, तो tension बन गया. Correct? ठीक है, देख लो. Now let's look at a question जहां पे rope is hanging in a curve. तो रोप अपने वेट के कारण हैंग कर रहा है. सो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ये भी एंगल थीटा है, एंड आई वांट टू फाइंड द टेंशन एट द सपोर्ट एंड टेंशन एट द बॉटम. क्या निकाला मुझे, टेंशन एट द सपोर्ट्स निकालना है, मतलब एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सीलिंग वहां पे टेंशन निकालना है, और बॉटम पर भी टेंशन निकाला, इसका मास m दिया. ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस में लाइक आई सेड जहां पे भी टेंशन निकालना है वहां पे रोप को स्प्लिट करके ड्रॉ द FBD, है ना. सो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे टेंशन निकालना है, यहाँ पे टेंशन सेम ही रहेगा. द रीजन इज कि दोनों एंगल सेम है ना थीटा. सो देयरफॉर अगर मैं FBD ऑफ द फुल रोप बनाऊं तो ये T0 का वैल्यू सेम होना चाहिए, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैव टू बैलेंस ईच अदर आउट. T0 cos theta हैव टू बैलेंस ईच अदर आउट. अगर वैल्यू अलग होंगे तो बैलेंस नहीं होंगे. ठीक है, सो एक तो मुझे पता चल गया कि ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं पूरे रोप पे. टेंशन जो बॉटम पे लगेगा वो एक इंटरनल फोर्स हो गया. अभी टेंशन एट द बॉटम का मतलब वन हाफ ऑन द अदर, वो क्या फोर्स लगा रहा है, पर वो तो अभी इंटरनल हो गया. तो पहले मैं T0 निकालूंगा बाय कंसीडरिंग द FBD ऑफ द एंटायर रोप. तो वर्टिकल फोर्स बैलेंस करता हूँ, 2 T0 sin थीटा इज इक्वल टू mg. तो यहाँ से मेरा T0 आ गया.
देन मुझे अभी टेंशन टी चाहिए, सो नाउ आई विल स्प्लिट द रोप देयर एंड आई विल कंसीडर एफपीडी ऑफ वन हाफ, कोई भी एक हाफ कंसीडर कर लेते हैं, सपोज लेफ्ट हाफ कंसीडर कर रहा हूँ, ये टी नॉट, ये एंगल थीटा, और बॉटम पे राइट पोर्शन विल अप्लाई फोर्स ऑफ पुलिंग फोर्स, है ना, द टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द रोप, ऑब्वियसली द रोप इज पुलिंग अलोंग इटसेल्फ, सो द टेंशन हियर विल बी हॉरिजॉन्टल, सो देयरफॉर इसका हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम अगर करूंगा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में एक वेट भी आएगा mg/2, बट हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम करूंगा तो मुझे टेंशन टी आएगा जो मुझे चाहिए, सो टी शुड बी बैलेंसिंग आउट टी नॉट कॉस थीटा, ठीक है, सो दोस आर द वैल्यूज दैट द क्वेश्चन आस्क्स, राइट, देख लो, दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू एट द टॉप, गुड नाइट.